अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे द थर्ड टाइप ऑफ सेल दैट इज ब्लड प्लेटलेट्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ thrombocytes. Thrombocytes are the smaller element of the blood who are actually produces from the larger cells of the blood called as a megakaryocytes. These megakaryocytes are undergoing fragmentation inside the inside the red bone marrow, and they produces platelets. So these platelets are smaller, roughly spherical, or you may say oval in shape. They are biconvex, and most importantly they are non-nucleated. द शेप ऑफ द प्लेटलेट्स इज नॉट वेल डिफाइंड। इनका जो शेप होता है कोई पर्टिकुलर नहीं होता है। सब में से कि ये ओवल शेप के होते हैं, रफली स्फेरिकल शेप के होते हैं, बायकॉन्वेक्स होते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट अगर इसका हम कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं और बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। दे आर स्मॉलर दैन आरबीसीज. These are smaller cells than the erythrocytes, and they are enucleated cells produced by the larger cells of the blood cells. And these larger cells of blood who are undergoing fragmentation, they are called as a megakaryocytes. Now, these cells are produced inside the red bone marrow through megakaryocytes by the process of thrombopoiesis. The process of formation of thrombocyte. The process of formation of thrombocyte is called as a thrombopoiesis. The lifespan और the size, अगर हम इसका साइज पहला देखेंगे तो जनरली शेप तो इनका बताया गया है कि रफली स्फेरिकल होते हैं, ओवल होते हैं, बायकॉन्वेक्स होते हैं. जो साइज होता है इनका, the size is they are smaller in size, they range from 2 to 4 मीव. इनका जो साइज होगा, डायमीटर जो इनका होगा वो रेंज करेगा from 2 to 4 माइक्रोन्स. Then the count of थ्रोम्बोसाइट, इनका जो काउंट होता है इट रेंज फ्रॉम 2.5 लाख टू 3. ये रेंज करते हैं फ्रॉम 2.5 लाख टू 3 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड. द नंबर ऑफ thrombocyte they may either increase or if they are decrease in abnormal condition. अगर इनके नंबर्स बढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस. द प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट का जो काउंट होता है नॉर्मल काउंट दिया गया है विच इज अराउंड 2.5 लाख टू 3 lakhs पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड. इफ द प्लेटलेट इंक्रीजेस, अगर थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स इंक्रीज करते हैं सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अ थ्रोम्बोसाइटोसिस. और इफ द नंबर ऑफ प्लेटलेट डिक्रीजेस, अगर प्लेटलेट्स के नंबर डिक्रीज होते हैं, दैट abnormal condition is called as a thrombocytopenia. So these are the two disorders related to thrombocyte, that is increased number of thrombocyte is called as a thrombocytosis, whereas the decreased number of thrombocyte is called as a thrombocytopenia. The average lifespan of the thrombocyte, एक एवरेज जो लाइफ स्पैन होता है थ्रोम्बोसाइट्स का, प्लेटलेट्स का, वो होता है अराउंड 5 to 10 days. The average lifespan of the thrombocyte is around 5 to 10 days. Now what is the role of thrombocytes? Thrombocytes, they helps in the blood coagulation, they helps in the blood clotting process. They secrete one of the chemical. Thrombocytes secrete one of the chemical at the site of injury, and that chemical is called as a thromboplastin, who helps in the blood clotting process. So it is all about blood platelets, which is also called as a thrombocyte. Now we discuss about blood coagulation. Blood coagulation और ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस होता है इट इज वन ऑफ द फिजिको-केमिकल प्रोसेस. इन क्लोज्ड सर्कुलेशन द ब्लड फ्लोज ओनली इन द क्लोज्ड वेसल्स. व्हेन they flows in the closed vessels, the blood does not clot due to presence of anticoagulant like a heparin. But whenever the blood comes out from the vessels, they came in contact with the atmospheric air, or at the time of injury, at the time of cut, the bleeding occurs. At that time, whenever the air came in contact with the blood, it clots. That means
the liquid blood converts into semi-solid state, and that semi-solid state, gel-like state of blood is called as a clot, and the process is called as a clotting process. अभी हम देखेंगे कि क्लॉटिंग प्रोसेस होता कैसा है. अब ये जो क्लॉटिंग प्रोसेस है ये होता है ड्यू टू थ्रोम्बोसाइट्स. ये थ्रोम्बोसाइट्स की वजह से होगा, बिकॉज थ्रोम्बोसाइट इट प्रोड्यूसेस वन ऑफ द केमिकल एट द साइट ऑफ इंजरी, एट द साइट ऑफ कट ऑफ ब्लड वेसल्स. तो ये जहाँ पर ब्लड वेसल्स कट हो जाते हैं या फिर अगर कहीं इंजरी होती है तो उस साइट पर ब्लड प्लेटलेट्स क्या करते हैं, एक केमिकल को रिलीज करते हैं हु प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन. तो हम देखेंगे अभी कि कोगुलेशन का प्रोसेस होता कैसे है. तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं एट द साइट ऑफ इंजरी, दे प्रोड्यूसेस वन ऑफ द केमिकल एंड दैट केमिकल इज कॉल्ड एज अ थ्रोम्बोसाइट्स. दिस थ्रोम्बोसाइट इनिशियली प्रोड्यूसेस वन ऑफ द एंजाइम. ये क्या करते हैं, एक एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज अ थ्रोम्बोप्लास्टिन. दिस थ्रोम्बोप्लास्टिन इट न्यूट्रलाइज. थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करते हैं, ये ब्लड में प्रेजेंट एंटीकोगुलेंट दैट इज हेपारिन या फिर एंटी थ्रोम्बोप्लास्टिन को न्यूट्रलाइज करते हैं. जो नॉर्मल ब्लड के अंदर हेपारिन होते हैं या फिर एंटी थ्रोम्बोप्लास्टिन होते हैं जो कोगुलेशन करने में रिवर्स इफेक्ट करते हैं, तो ये पहले क्या करेंगे, उसको न्यूट्रलाइज करेंगे. तो थ्रोम्बोप्लास्टिन इनिशियली इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ हेपारिन एंड देन दिस थ्रोम्बोप्लास्टिन इट आल्सो प्रोड्यूसेस वन ऑफ द एंजाइम. ये और एक एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज अ प्रोथ्रोम्बिनेज. Thromboplastin it produces one of the enzyme called as a prothrombinase. Now this prothrombinase it converts, ये क्या करते हैं, inactive plasma protein. Prothrombinase it is one of the enzyme who convert inactive plasma protein that is prothrombin. Prothrombin is one of the inactive plasma protein. It converted into thrombin in presence of calcium and vitamin K. In presence of calcium and vitamin K, ये जो एंजाइम है प्रोथ्रोम्बिनेज, ये इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन जो कि एक प्रोथ्रोम्बिन होते हैं उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड इट्स एक्टिव फॉर्म इज कॉल्ड एज अ थ्रोम्बिन. नाउ दिस थ्रोम्बिन, ये जो थ्रोम्बिन है फाइब्रिनोजेन की वजह से, विच इज अ सोल्यूबल, एक सोल्यूबल एलिमेंट होता है, एक सोल्यूबल मॉलिक्यूल होता है. दिस फाइब्रिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू इनसोल्यूबल फाइब्रिन. थ्रोम्बिन क्या कर रहे हैं, थ्रोम्बिन जो है वो इनसोल्यूबल फाइब्रिनोजेन को सोल्यूबल फाइब्रिनोजेन को इनसोल्यूबल फाइब्रिन में कन्वर्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन K. Now this fibrin it helps in the formation of fibers over the wound. फाइब्रिन क्या करते हैं, दे मेक अ फाइन नेटवर्क ऑफ फाइबर ओवर द वुंड एंड इट converts the liquid state of blood into a gel-like or a semi-solid state of the blood called as a thrombus or the clot, who not only contains a blood but a dead blood cells. यानी कि फाइब्रिन ये क्या करते हैं, एक फाइन नेटवर्क बनाते हैं फाइबर्स का, और ये फाइन नेटवर्क वुंड के ऊपर जब बन जाता है तो वो एक लिक्विड स्टेट को, ब्लड के लिक्विड स्टेट को एक सेमी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं. तो जो प्रोसेस होता है एट द एंड ऑफ द सेमी सॉलिड स्टेट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज अ क्लॉट और इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अ थ्रोम्बस. सो ओवरऑल द ब्लड prevent to flow outside the vessels and they prevent excessive bleeding, and finally coagulation occurs, finally clotting occurs. To perform this chemical reaction, ये जो हम देख रहे हैं chemical reaction जहाँ पर blood का clotting होता है, to perform this chemical reaction the process completes अराउंड 2 to 8 मिनट. यानी जब भी कोई ब्लीडिंग होती है तो उसको सेमी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए या फिर ब्लीडिंग को रुकने के लिए कितना टाइम लगता है, तो वो होता है अराउंड 2 to 8 मिनट इज रिक्वायर्ड टू कोagulate द ब्लड एंड
about the process of blood coagulation.